بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کمر کس لی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے اتحادیوں کو ہلانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے صبح آصف علی زرداری کو فون گھمایا، سابق صدر نے بھی تحریک عدم اعتماد پر حمایت کا یقین دلایا۔ شام ہوئی تو مولانا نے چودھریوں کے ساتھ بیٹھک لگا لی، عدم اعتماد پر تعاون کی درخواست پہنچائی۔ کامل علی آغا کہتے ہیں موسم ابر آلود ہے، 2-3 دن میں صورتحال واضح ہوگی۔ اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے۔ اپوزیشن اتحاد نے اپنے پتے شو کر دیے۔ حزب اختلاف کے خیالات ملے تو حالات کی تبدیلی کے لیے مسلم لیگ خاف گیم چینجر بن گئی۔ اسی لیے حکومت اور اتحادیوں میں دوریاں پیدا کرنے کا مشن پی ڈی ایم سربراہ نے سنبھال لیا۔ جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں۔ حکومتی اتحادی کو ہم آواز بنانے کے لیے گزشتہ دنوں زرداری صاحب چودھریوں کے در پہنچے، لیکن شاید مراد پر نہ آئی، اس لیے فضل الرحمان سیاسی عیادت کرنے ظہور پیلس جا پہنچے، لیکن اتحادی تو انتظار کی نوید سناتے نظر آتے ہیں۔ اگلے 2-4 دن میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ مطرح تو ابھی تک ابر الود ہے، جب فضا صاف ہوگی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ فضل الرحمان کے بعد شہباز شریف بھی چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے جائیں گے، لیکن کیا اس ملاقات میں بھی برف پگھل سکے گی؟ یہ مطرح تو ابھی تک ابر الود ہے، جب فضا صاف ہوگی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اپوزیشن اتحاد تبدیلی سرکار کی بساط جلد سے جلد لپیٹنے کے لیے سرگرم ہے، لیکن حکومت کو پورا یقین ہے کہ ناکامی اس بار بھی حریفوں کا مقدر بنے گی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جرأت کا مظاہرہ کریں، کل تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں اور تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی اور خود آپ کو آپ کے ممبران اسمبلی سرپرائز دیں گے۔ اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد شوق سے لائے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، وفاقی وزراء نے اعلان جنگ کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن کی تحریک کا آئینی اور پارلیمانی انداز سے مقابلہ کریں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے پہلے کرپشن کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے نمبر گیم میں اپوزیشن کو مات دینے والی تبدیلی سرکار کا اس بار بھی مقابلے کا عزم۔ معاون خصوصی شہباز گل نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے پہلے کرپشن کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ کو این آر او نہیں ملا تو اب آپ عدم اعتماد کا پینترا کھیلنے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک دم سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور عدم اعتماد کی بات شروع ہو گئی ہے۔ یہ اصل میں وہ فرد جرم ہے جو عائد ہونے جا رہی ہے، یہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پی ڈی ایم کی اپنی صفوں میں یکسوئی نہیں، تحریک عدم اعتماد لانا اپوزیشن کا جبکہ اس کا مقابلہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا اپوزیشن کی تحریک کا آئینی طریقے اور پارلیمانی انداز سے بھرپور مقابلہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنے رد عمل میں کہا کہ صبر کے باوجود گھبراہٹ میں کمی نہ آئے تو پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پر گھسیٹنے والی ویڈیو سے جی بہلانے کی کوشش کریں۔ پی ڈی ایم سربراہ کی چودھری برادران سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا ہے۔ فضل الرحمان نے چودھری برادران سے عدم اعتماد پر تعاون کی درخواست کی۔ چودھری برادران نے کہا آپ اپوزیشن والے پہلے آپس میں طے کر لیں، جس پر مولانا نے 2 روز کا وقت مانگ لیا۔ محسن بلال سماجی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ محسن، کیا کچھ ہوا ملاقات میں؟ اندرونی کہانی جو سامنے آئی ہے اس سے متعلق بتائیے۔ جی بالکل، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان چودھری برادران کے گھر پہنچے۔ ان کی ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ تک جاری رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 پوائنٹ ایجنڈا چودھری برادران کے سامنے رکھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شہباز شریف کی ملاقات کی راہ ہموار کرنے آئے ہیں، جس پر چودھری پرویز الہی مسکرائے ذرائع کے مطابق، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے چودھری برادران سے طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے
ताउन की अपील की और जो PDM के इजलास में फ़ैसले हुए उस हवाले से भी चौधरी बरादरान से मुशावरत की। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि आपसे पहले आसिफ अली जरदारी भी मुलाकात करके गए हैं, जिस पर चौधरी बरादरान का ये कहना था कि उनके लिए आसिफ अली जरदारी भी काबिल एहतराम है। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि जो तजावीज़ आपने दी हैं उनको वो अपोजिशन की दीगर जमातों के सामने रखेंगे और 2 रोज़ बाद जो है वो इस हवाले से आपको फ़ोन पर आगाह किया जाएगा। चौधरी बरादरान का ये कहना था कि आप अपोजिशन वाले पहले अपने साथ मुशावरत कर लें और जब आप हमें आगाह करेंगे तो उसके बाद वो अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद जो PDM है और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी हैं उनको बाकायदा अपने फ़ैसले से आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। शौकत का गुस्सा शदीद तरीन, खबर की तफसील इसी बुलेटिन में। ऑपोजिशन किस बात का इंतजार कर रही है? नाटक छोड़े मैदान में आए। वफाकी वजीर शिबली फराज की ललकार। प्रोग्राम एहतसाब में गुफ्तगू करते हुए कहा, कल की मीटिंग के बाद शक्लों से लग रहा था जैसे ये लड़कर आए हों। ये फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये फिर मैदान में आए, जिस तरह पश्तो में कहते हैं दा गज़ और दा मैदान। तो इनको बजाय ये ज़बानी इस किस्म के नाटक रचाने के, इनको अमली तौर पे करना चाहिए। इनकी जो कल मीटिंग हुई थी उसमें ये ऐसे लगे जैसे कि किसी शोक से उठ के आए हों या आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करके आए हों, और इनके चेहरों से शिकस्त खुर्दा चेहरे नजर आ रहे थे, जिसमें कि सबकी आंखों की डायरेक्शन भी इधर उधर हो रही थी, जिसमें कि पता चल रहा था कि ये लोग एक साथ नहीं है। ये जमहूरियत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं पिछले 3 साल से, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने आप को सियासी जमातें कहते हैं। असनाद तो खेल ख़त्म होने पर तकसीम की जाती हैं। लगता है कि इन्होंने खेल ख़त्म होने का इंदिया दे दिया है। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान PDM सरबराह वज़रा में असनाद की तकसीम पर हंसते हंसते चोट भी कर गए। पीछे रह जाने वाले वज़रा पर ताक ताक कर निशाने भी लगाए। कारकर्दगी पर उन्होंने कुछ वज़रा को तमगे भी अता किए। असनाद कब दी जाती है? जब खेल खत्म हो जाते हैं। कोरोना का मुकाबला किया, मतलब अपनी इकॉनमी भी बचा दी और अपने लोगों को बचाया। टॉप 3 दफ़ा पाकिस्तान का नाम है। जब भी कहते हैं दुनिया ने हमारी माशी तरक्की को तस्लीम कर दिया है, तो फिर हमारे मईशत के और खजाने के वजीर को क्यों महरूम रखा? ये बहुत बड़ा गर्क हो गया यार। We have given a new direction to Pakistan foreign policy. कहते हैं हमने बड़े अच्छे खारजा ताल्लुकात बनाए हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों महरूम रखा? मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ। कहते हैं हमारी दिफा मजबूत हाथों में। अगर दिफा मजबूत ही हाथों में है तो फिर परवेज खट्टर को क्यों महरूम रखा? वजारत खजाना को टॉप 10 में जगह ना मिली। क्या शौकत तरीन वजीर आजम से नाराज हैं? कराची चैम्बर के दौरे पर आए शौकत तरीन से समा ने सवाल किया, इमरान खान आपकी कारकर्दगी से मुतमईन ना हुए तो क्या करेंगे? शौकत तरीन को गुस्सा आ गया, क्या जवाब दिया सुनिए। ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने जो कारकर्दगी दी है उसमें आपकी वजारत टॉप 10 में नहीं आई है। इसी हुकूमत में 3 वजीर जो हैं वजारत खजाना के वो जा चुके हैं। अगर आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो आप ये बताइए कि आप कैसे यहाँ ताजिर में मुतमईन चले जाएंगे यार? अवाम के साथ मिलकर वज़ीर आज़म का बोरिया बिस्तर गोल किया जाएगा। लीग रहनुमा हमजा शहबाज की ललकार, अदम एतमाद के कामयाब होने का दावा किया। इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग नया पाकिस्तान क्या बनाते, पुराने को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। अब इमरान खान की तलाशी होगी और उन्हें जवाब देना होगा। और वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी, अवाम के साथ मिलकर इमरान न्याजी का बिस्तर गोल करेंगे। एतमाद पर भी हम काम कर रहे हैं, अदम एतमाद भी कामयाब होगी। नया पाकिस्तान तो क्या बनाना था, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर दिया। हाथ उठाकर वादा करो, इमरान न्याजी के खिलाफ सड़कों पे निकलोगे। DAP की बोरी 2500 की मिलती थी, आज 10,000 की नहीं मिलती है। इमरान न्याजी तुम कैसे माफिया माफिया खा गया? आवाम की आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते। इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान न्याजी है। जब तुमसे पूछा जाता है कि तोशा खाने का हिसाब दो तो तुम पतली गली से निकल जाते हो। तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान न्याजी साहब
आवाम से तमाशा खेलना बंद कर दो। पूरे पाकिस्तान में आवाम की आंखों में खून उतरा देख रहा हूँ। अब तलाशी तुम्हारी होगी, अवामी अदालत में होगी और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। बिजली 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी हो गई है। सार्फिन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में डाला गया। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट। हुकूमत ने महंगाई का मुकाबला करते आवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया। फरवरी में बिजली बिलों पर 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा अदायगी करना होगी। नेपरा ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का परवाना जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर 2021 में बिजली की पैदावारी लागत 8 रुपए 63 पैसे फी यूनिट रही। पेशगी पैदावारी लागत का तखमीना 5 रुपए 53 पैसे फी यूनिट था। सार्फिन कहते हैं तब्दीली सरकार ने बहुत मायूस किया। अवाम के ऊपर मुसलसल अजाब की शक्ल में ये हुकूमत नाजिल हो रही है और वो जो है ये जो अजाब है उसका वक्तन फ़वक्तन अवाम को अंदाज़ा होता है। कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी बाकी जो खुराक की बुनियादी अशिया है वो महंगाई हो रही है। हर चीज़ महंगी है कि कोई गरीब बंदा जो रात को इज्जत से खाना खा रहा था ना, उसके भी बच्चे रात को भूखे सोते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कैमरामैन नियाज़ अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। एहतसाब के अमल को तेज़ करने के लिए वज़ीर आज़म के नए मुशीर मुसद्दिक़ अब्बासी को पुराने साथियों की याद आ गई। एडिशनल डायरेक्टर नैब ज़ियाउल्लाह को एसेट रिकवरी यूनिट में बुला लिया है। एहतसाब ब्यूरो मुल्तान के डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर को भी डेपुटेशन पर फेडरल सेक्रेटेरिएट लाने के लिए खत लिखा जा चुका है। आपको बताएं कि एहतसाब में तेज़ी का मिशन। एसेट रिकवरी यूनिट के नए सरबराह को पुराने नैब साथियों की याद आ गई। ज़ियाउल्लाह एसेट रिकवरी यूनिट में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी खिदमत अंजाम देंगे। नैब मुल्तान के डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर को डेपुटेशन पर फेडरल सेक्रेटेरिएट लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बात करते हैं, जिनका कहना है कि IMF प्रोग्राम से वो नाखुश हैं। कहते हैं कि रोज़ रोज़ के IMF प्रोग्राम का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। दीगर ममालिक से भी कर्ज़ों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इकॉनमी में बढ़ावा, लेकिन सब के लिए, और वो भी अगले 20 से 30 साल के लिए, ताकि जो हम जिस जगह पे पहुँचे हैं उससे हम निकलें। ये रोज़ के IMF के प्रोग्राम, ये रोज़ जाके मुल्कों से, इदारों से हम जो कर्ज़े मांगते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। डेरा इस्माइल खान बज़ाहिर पसमानदा जिला, मगर हैवी वेट सियासतदानों का डेरा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम तीनों जमातें इसे अपना गढ़ बताती हैं। इसीलिए यहाँ मेयर के इलेक्शन को बहुत अहमियत दी जा रही है। ज़िले की कुल आबादी है 17 लाख। 2018 के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर इसी हलके से रुकने कौमी असम्बली और उनके दूसरे भाई फैसल अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी भी 2008 में इसी हलके से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि 2018 में उनके भाई अहमद करीम कुंडी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। मेयर की कुर्सी के लिए अली अमीन गंडापुर के बड़े भाई उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और JUI से ताल्लुक़ रखने वाले कफील निज़ामी के दरमियान मुकाबला होगा। ANP अपने उम्मीदवार उमर खताब शेरानी के कत्ल के बाद इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रही है। इलाके के मजबूत सियासी खानदान मियां खिल ब्रादरान भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ग्रुप JUI की हिमायत कर रहा है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी जियालों पर बरस पड़े। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो मार्च करने से पहले अपने वालिद से दौलत का हिसाब मांगें। जरदारी और शरीफ खानदान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान जंग कर लिए हैं। सोने पे सुबह का ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूँ, कह रहा है कराची से। कहाँ जा रहा हूँ? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। डेम्बी ने सुना मैं टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। जरदारी इधर
اور شریف خاندان پنجاب میں. ان کی کلپ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے. ساری دنیا نے سنا ہے. اور خان صاحب اس وقت بھی کہتے تھے کہ آخر میں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ پوری نورا کشتی میں 2008 سے 2018 تک انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا.